morning to all. In this lecture, we are going to discuss about the constituents of media which are used for or required for the industrial fermentation. Okay, to carry out the industrial fermentation, we generate a media, we produce a media, and that media is being produced by different constituents like carbon source, nitrogen source, water, minerals, buffer, precursors, antifoam agents, some vitamins or amino acids. Okay, so these all the nutrients it serve as the or it enhance the growth of the microorganism and results into the yield of the required product or a desired product. Okay, so let's see one by one each nutrient in detail. So first of all, carbon source is there. Carbon source, in that the well-known example is of carbohydrates. Okay, so what are the carbon sources? The well-known carbon source which is used in the preparation of media is the starch, sugar. So these are the main two sources which act as the carbon source, comes under the carbohydrate. So sugar, any polysaccharide or monosaccharide sugar can be used. Now this media sources, it depends on the microorganism or strain which is used for the production. Plus it also depends on what type of product we have to form, whether it is organic acid, whether it is enzyme, whether they are primary metabolites, whether they are secondary metabolites. So depending on the product which we want to produce and the strain which we are using, on these two factors our components or our media composition is been dependent. Okay, so carbohydrates, mainly sugars are being used, sugars like glucose, fructose, sucrose. Okay, so this serve as the carbon source. Okay, next is the starch. Starch, maize grains or potato is being used as the starch. Okay, this starch is also used as the nitrogen source apart from the carbon source. The well-known example which is used under the carbon source is molasses. Molasses, the sugar cane is being extracted, it is being the juice is extracted, it has been refined. तो जो refining के बाद जो हमें product मिलता है, by product मिलता है, उसे हम molasses कहते हैं. And molasses, it is very rich source of the carbon, a very rich source of the carbohydrate, and it enhance 50% of the nutrients are being provided by this simple molasses. तो आपने बहुत से composition media में molasses as a carbon source देखा होगा. Okay. Next is the sulfide based liquor which is obtained from the after complete processing of the sulfide, the liquid which is obtained is the sulfide based liquor. Next is the black strap. Black strap क्या है? It is the type of the molasses. Okay, black strap क्या है? It is the type of the molasses. Next is the malt extract. Malt extract ये germinated grains. Okay, the grains which are germinated. It is a type of the cereal grains which is a rich source of the energy and protein. Okay, so these all the components or the ingredients they serve as the carbon source which comes under the class carbohydrate as they contain the carbon in its structure. Carbon, nitrogen और organic compounds उनके structure में present है. Let's see now next source, that is the nitrogen source. As like carbon source, nitrogen source also provide nutrients to the strain or nutrients to the microorganism to enhance the product which is to be formed. Okay. So now nitrogen source में mainly use किया जाता है corn strip liquor. What is corn strip liquor? It is the byproduct of the starch. After processing of the starch, जो भी processing, refining, extraction method है, इस सब processing के बाद जो हमें by product मिलता है in the liquid form, it is known as the corn strip liquor. Okay. Next, ammonia and nitrate salts are
it may be in the monoform, so there are different form depending on the strain and the product which is to be produced, as I told earlier. Then the next point is many commercial fermentation use complex nitrogen sources which are byproducts of agricultural and food processing industries, जैसे कि corn strip liquor, fish or bone meal, protein peptide and casein. Casein is the protein. Okay, तो बहुत सारे फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स सोर्सेस यूज किए जाते हैं जो कहाँ से डिराइव है, फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, ओके, व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल और द बाय प्रोडक्ट्स. वी विल नॉट से बाय, हम रॉ मटेरियल्स नहीं यूज करेंगे, बट व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बाय प्रोडक्ट्स. किस चीज के बाय प्रोडक्ट्स? ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग. ओके, फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग के बाद जो मटेरियल ऑब्टेन होता है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इन दिस मीडिया एज ए नाइट्रोजन सोर्स. तो वो कौन से है? कॉन्स्ट्रिप लीकर है, प्रोटीन पेप्टाइड है, केसीन है. सो ये सब एज अ प्रोटीन फंक्शन करते हैं, व्हिच प्रोवाइड्स द नाइट्रोजन सोर्स रिक्वायर्ड फॉर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द स्ट्रेन. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन सोर्स. नेक्स्ट सोर्स है अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स. ओके, अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स कुछ प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है और कुछ स्ट्रेन्स के लिए रिक्वायर्ड. इट्स नॉट द कंपल्सरी टू बी यूज्ड. ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट टू स्ट्रेन्स एंड द प्रोडक्ट व्हिच इज टू बी प्रोड्यूस्ड, हम वो अमाइनो एसिड्स या फिर विटामिन्स यूज करते हैं. नाउ दिस अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स दिस सर्व्स एज द प्रीकर्सर्स. ओके, ये प्रीकर्सर्स की तरह भी एक्ट किए जाते हैं. नाउ व्हाट इज प्रीकर्सर? जब ये पॉइंट आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स दिस सर्व्स एज द नाइट्रोजन सोर्स आल्सो. इवन दिस सर्व्स एज द प्रीकर्सर, इवन दिस सर्व एज द नाइट्रोजन सोर्स. तो मैंने आपको जैसे बताया, इट्स नॉट मैंडेटरी टू यूज. ओके, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इट सर्व एज द नाइट्रोजन सोर्स और ऑलरेडी हम मीडिया में नाइट्रोजन सोर्स सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो ये मैंडेटरी नहीं है. कौन से यूज किए जाते हैं अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स? बायोटिन एंड थायमिन. These two vitamins are being used for the production or for to enhance the microbial strain, to enhance the growth of the microbial strain. Vitamins obtained from the cheap raw materials like, okay, raw materials से कुछ विटामिन ऑब्टेन होते हैं जैसे कि राइस पॉलिशिंग, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कॉटन सीड फ्लोर. ओके, तो राइस पॉलिशिंग के बाद जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता है वो एज अ अमाइनो एसिड या विटामिन यूज किया जाता है. ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड कॉटन सीड फ्लोर. अब कॉटन सीड के तो बहुत फायदे हैं. वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम द कॉटन सीड. वी गेट द ऑयल. ओके, कॉटन इज बीन यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लस इट इज यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और उसका फ्लोर भी हम यूज कर सकते हैं इन द फर्मेंटेशन मीडिया एज द सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स. तो ये सब रीसाइकल्ड प्रोडक्ट्स है, सब हम इसे रिसाइकल कर रहे हैं. ओके, so these act as the amino acids and vitamins. Next is your minerals. Minerals, these are required in trace amount, यानी कि बहुत कम अमाउंट में ये required है. Same like of amino acids and vitamins. कुछ फर्मेंटेशन मीडिया में मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ फर्मेंटेशन मीडिया में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं. ओके, मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम इज देयर, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, क्लोराइड एंड फॉस्फोरस. ऐसे कुछ मिनरल्स ट्रेस अमाउंट में यूज किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड द स्ट्रेन व्हिच इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन मीडिया. दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स. तो ये मिनरल्स हमें कहां से मिलते हैं? ये मिनरल्स हमें मिलते हैं फ्रॉम द कार्बन एंड द नाइट्रोजन सोर्स. मतलब कैसे? फ्रॉम द मेज वी कैन गेट द मैग्नीशियम, फ्रॉम द पोटैटो वी कैन गेट डिफरेंट मिनरल्स. सो ये मिनरल्स जो है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस बोथ कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स. ओके, नेक्स्ट आर बफर. बफर क्या करते हैं? हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच. सो वी ऐड द बफर. मोस्ट कॉमनली बफर कौन से यूज किए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया and sodium hydroxide. Okay, these are the commonly used buffer just to maintain the pH of the media so that
माइक्रो जो हमने यूज किया, जो स्ट्रेन हमने यूज किया है, इट विल रिमेन स्टेबल इन दैट फर्मेंटेशन मीडिया एंड इट विल एनहांस द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. नेक्स्ट आर एंटी-फोम एजेंट्स. नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर फोम. तब हम एंटी-फोम यूज कर सकेंगे. तो फोम क्या है? फोम इज नथिंग बट इट इज द सिनोनिम ऑफ बबल फॉर्मेशन. अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, फर्मेंटर इट कंसिस्ट ऑफ डाउनसाइड, दैट जो टॉप होता है, टॉप को हम बोलते हैं हेड स्पेस, और जो नीचे है दैट इज द बॉटम स्पेस. ओके, सो एट द टॉप स्पेस बबल और वी कैन से फोम इज बीन क्रिएटेड. अब फोम क्यों क्रिएट होता है? ड्यू टू द मिक्सिंग, एजिटेशन की वजह से. ओके, एजिटेशन हो रहा है, एजिटेशन इज बीन प्रोवाइडेड, मिक्सिंग हो रही है. मिक्सिंग की वजह से क्या क्रिएट होता है? बबल्स लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं. ओके, झाग क्रिएट होती है. तो बबल्स को, वो बबल्स ऊपर आते हैं, ऑन टू दी हेड स्पेस आते हैं, एंड दैट बबल्स आर नोन एज द फोम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दैट फोम. क्यों? क्योंकि इट मे लीड टू द कंटामिनेशन, और इट मे लीड टू द डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और इट मे लीड टू द डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रेन. ओके, तो फोम प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी फोम यूज करते हैं. तो कुछ एंटी फोम नेचुरली अवेलेबल है, कुछ सिंथेटिक लैब्स में तैयार किए जाते हैं. जो नेचुरली अवेलेबल फोम्स है, दिस इज द ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये नेचुरल अवेलेबल एंटी फोम्स है. और जो आर्टिफिशियली हम तैयार करते हैं दैट इज द सिलिकॉन ऑयल. ओके, सो दिस आर द टू एंटी फोम एजेंट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड. अब एक्चुअली एंटी फोम कैसे रिड्यूस करते हैं? बाय द सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज. मतलब क्या? नाउ ड्यू टू एजिटेशन टेंशन क्रिएट होता है, ओके, स्ट्रेस क्रिएट होता है. वो स्ट्रेस ऊपर फोम की फॉर्म में आता है. ओके, हेड स्पेस में वो फोम की फॉर्म में आता है. तो एंटी फोम के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर दी टॉलरेबल टू दैट टेंशंस, they are tolerable or they show the surface active property, so they can reduce that foam. Okay, so that is the main principle behind anti-foam agents. Next are the precursors. Pre मतलब पहले, before starting the fermentation process we add the precursors, और at the time of the fermentation process, जब fermentation process run out होती है तब हम ऊपर से ये precursors add करते हैं. Okay, precursors एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है. फिनिल एसिटिक एसिड इज द साइड चेन प्रीकर्सर व्हिच इज यूज्ड इन द पेनिसिलिन. क्या करता है ये फिनिल एसिटिक एसिड? फिनिल एसिटिक एसिड इट डज नॉट, सॉरी आई wrote a toxic effect, let me rub it. Okay, phenyl acetic acid it enhance the production of this penicillin. Okay, precursor हम प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाला है उस प्रोडक्ट की ग्रोथ एनहांस करने के लिए हम प्रीकर्सर्स यूज करते हैं. नेक्स्ट आर दी इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स इट इनहिबिट व्हाट? क्या इनहिबिट करेगा? इट विल इनहिबिट द अननेसेसरी प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन. जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वही हमें मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो उसकी ग्रोथ, उसका प्रोडक्शन वो क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं. एग्जांपल सोडियम बाइसल्फाइड इट इज यूज्ड एज द इनहिबिटर इन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लिसरॉल. ओके, मतलब अगर हमें ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन चाहिए होगा तो सिर्फ ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन होगा, इसके जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म नहीं होंगे जब हम सोडियम बाइसल्फाइड इनहिबिटर ऐड करेंगे इनटू द फर्मेंटेशन मीडिया. बट विथ टेकिंग प्रिकॉशंस. कौन से प्रिकॉशंस? इट मे नॉट अफेक्ट और इट मे नॉट harm our strain. Okay, तो ये सब conditions maintain रखकर we add the inhibitors. Next is opposite of inhibitor, inducers है. Inducers क्या करेंगे? It will induce the product formation or it will enhance the product formation in the rapid way. Okay, fastly product form करते हैं हमें help करेगा. So inducers like starch is used for the amylase, fatty acids are used for the production of the lipase. Okay, मतलब ये inducers they act as the substrate for the microorganism. Last but not least, the very important component is water. ये सब हम कहाँ mix कर रहे हैं? Into the water. So water का main function क्या? It helps to dissolve all these
components which we have added. Okay, so water is also a very important component for the mixing or to provide the stability of these components. Okay, before adding water, water is been checked, the distilled water, sterile water add किया जाता है कि contamination होना, तो hard water अगर होगा तो it is been converted into the soft water, and then this all the required components nitrogen source, carbon source ये add किए जाते हैं, and our required fermentation media is ready to carry out the fermentation process, and then inoculum is been added और further fermentation process carry out होती है. So this is all about the media components which are required for the fermentation process, whether at the lab level, pilot level or industrial level. Thank you.